they'll have? They have a mic? Okay, once again, thank you very much. And God bless you. This is, like, like I always say, this is the nicest moment for me on my birthday. The rest of the parties, whatever happens, happens. But I think this is the nicest time. So thank you. And I hope you guys eat and drink a little well and it's not too hot here. Thank you very much for all your wishes and God bless you. Thank you. शाहरुख अभी भी थकावट है या फिर अभी भी बहुत एक्साइटेड है तो शाम No, this is nice. Now I've rested. I've slept till 2 o'clock. So I've rested from 6 o'clock to too much sleep for me. But I've been a little unwell with my sinus, but I'm feeling much better now and happier. So now it's nice and cool. I'll be fresh. I'll take a bath, play with my children and celebrate the rest of the birthday. नहीं अभी उठा वो अभी उठा नहीं कल से उठा नहीं जब से मैं आया वापस I came back from work from Jaipur then I went to sleep so I got up by 11 he had gone to sleep so I just met him in 10 minutes that's why I was half an hour late I was playing with him. आपका बर्थडे तो हाउ एक्चुअली मौका बहुत अच्छा जाता है मेरे लिए अगर फिल्म अच्छी चल जाए तो जन्मदिन में डबल खुशी हो जाती है लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं चली है तो बड़ा दुख होता है उस वक्त सो आई थैंक एवरीवन हू सीन हैप्पी न्यू ईयर एंड बट it's I get very humbled and very awkward honestly on my birthday because so many people celebrated including all of you wonderful people and people outside on the radio stations everywhere I've been going in the city so everywhere there so I think God has been too kind to me for the kind of person I am to give me so much love. I am very, very grateful and very humble. There's nothing else I can feel on my birthday but all humility. And thank the Almighty and thank everyone over the years who've loved me so much. This is unquantifiable. ये बहुत ही मैं समझा नहीं सकता हूँ मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा फीलिंग होती है मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ compared to the kind of love I get. सिर्फ मूवीज में काम करता हूँ एक्टिंग करता हूँ और उसकी वजह से इतना सारा प्यार ऐसे लोग धक्कन धक्की यू नो कल रात से यहाँ पे पूरी सड़क पर लोग खड़े हुए थे और पटाखे ये कुछ दुआओं की वजह से है आप सबकी अदरवाइज मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए थैंक यू Shahrukh, year after year it has been different. So reminiscing your first year, like how these people had come, would you like to share something with us? Yeah, it has been amazing, at least since I've shifted to Mannat here, since 2000, or 97, 98. और यही कह सकता हूँ कि शुरुआत में आप ही लोग थे तब 7-8 लोग हुआ करते थे पहली बार जब केक खाया था साथ में मिलकर तो 1-2 केक होते थे and it was quite exciting जब शुरुआत की थी अब आप बहुत सारे हो गए और जैसे जैसे एक्चुअली इसकी एक ही बात है जैसे जैसे आप लोग मैं आपको मीडिया नहीं समझता हूँ आप में से 80-90% को मैं बहुत पहले से जानता हूँ सो आप लोग भी दोस्त हैं प्यारे हैं तो जैसे जैसे आप बढ़े आई थिंक बाहर फैंस भी बढ़े हैं एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होगा आप लोग इतना प्यार दिखाते हो बार बार मेरे बारे में बातें दिखाते हो टीवी पे न्यूज़पेपर्स में सो आई थिंक उसकी वजह से भी ये सब प्यार बढ़ गया है तो इट इज़ वेरी हम्बलिंग आई everywhere I think it's not going to be the same next year because everybody must be used to it and next year I think I'll be 50 so it becomes even more special बहुत लोग मुझे मिलते हैं अरे 50 तो बहुत अच्छा होता है और भी बड़ा होता है so मेरे लिए बड़ापन नहीं है कि इतना प्यार मिलता है and हर साल बढ़ता ही जा रहा है और जो बाहर पुलिस वाले हैं और भी खफा होते जा रहे हैं कि भीड़ बढ़ जाती है ट्रैफिक बढ़ जाती है so I'm sorry to the police and all जितने मेरे नेबर्स हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक ये 2-4 दिन जो है बहुत तकलीफ पहुँचती है सबको हाय शाहरुख Wish you a very happy birthday. थैंक यू Shahrukh, what's your thought on turning 49? I've always said this I think last year also if you were here I don't understand the age at all I'm physically I feel very good work wise I feel very energized अभी मैं शायद कल से इंशाल्लाह फैन की शूटिंग शुरू कर दूंगा so I feel very happy just going and working और मैं जितना भी काम करता हूँ I don't know what is one supposed to feel as one gets older is one supposed to get fatter so no is one supposed to have more grey hair I dye them is one supposed to have less energy I don't feel less energy is one supposed to work less I work even more so maybe I'm regressive मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे छोटा हो रहा हूँ I think so I don't feel it at all I find it shocking actually I meet some people who are 50 from my contemporaries who are not in films and I get quite shocked
they seem to have settled down and relaxed like uncles and papas. I don't feel like that. I'm a papa and I'm an uncle. My son's friends who are taller than me call me uncle. They've grown up in front of me. Yesterday all the girls and boys from some Halloween party सब यहाँ पर आए और सब इतनी बड़ी हो गई लड़कियाँ. As always, जैसे लड़कियाँ हैं सारी मुझसे सब लंबी हो गई जो मेरी गोद में खेली है. So I find it very strange when they call me uncle and but they don't treat me like one. So I don't know how to react to this number. I feel the same I felt 5, 7, 10 years ago really. Any wish that you have asked for this year? मतलब सचमुच मैं ऐसा आरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ. अब और मैं क्या विश करूँ? खुदा ने सब कुछ दिया हुआ है. अभी और क्या विश करूँ? बस I just ask and genuinely I do this. I go to my rooftop and pray कि जितना प्यार मुझे आप लोगों ने दिया, दुनिया ने दिया है, मैं सबको उतनी खुशी किसी तरह से मिल जाए. मैं ऐसा बोलते हुए बहुत ही एरोगेंट लगता है, लेकिन क्योंकि अब एक नाम ब्रांड जैसा हो गया तो इसलिए कह देता हूँ. माफ कर दो को लगे कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, बट मैं चाहूँगा हर किसी की जिंदगी शाहरुख खान जैसी हो. यही विश करता हूँ. शाह भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. लेफ्ट में आप राइट. मेरा मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ. सबसे पहले तो ये एक सरप्राइज है और आप इसे खोल कर दिखाएं सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूँ. क्योंकि ऐसा निकलेगा तो नहीं. नहीं कुछ ऐसा नहीं है. और मैं चाहता हूँ स्टील वाले इसको आपके लिए स्पेशली. शाह भाई इसे खोल के दिखाएं. शाह भाई ये मेरी मॉम ने बनाया स्पेशली फॉर यू. थोड़ा गर्म है मगर ये आप बाहर जब आएंगे आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड शूटिंग जब ठंड होगी. You made my day, शाहरुख. थैंक यू. मम्मी को कहना बहुत कम लोग बोलते हैं एक्टर. ठीक है चलो 2 मिनट तो बैठ लेता हूँ, पसीना आएंगे तो उतारता हूँ. थैंक यू वेरी मच. शाहरुख फौजी में जो पहला दिन था तब से लेकर आज तक क्या मतलब बहुत बड़ी जर्नी रही है आपकी. कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं. मैं सचमुच कहूँगा मेरे को पहले दिन से लेके आज के दिन में कोई फर्क ही नहीं समझ आता है. मैं बाहर ऑब्वियसली नाम बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, लोग स्टार बोलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी पड़ती हैं जो अब करनी पड़ती हैं. लेकिन जो मेरा काम का नज़रिया है, जो मेरी ज़िंदगी है, वो बिल्कुल वैसी है कि मैं सुबह जाता हूँ, काम करता हूँ, इतनी एक्साइटमेंट से. अभी भी हवा से लड़कियाँ मेरे गोद में गिरती रहती है जैसे फौजी में गिरी थी, और मैं उनको उठाता रहता हूँ, प्यार करता रहता हूँ, और मुझे कोई भी फर्क नहीं महसूस होता, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता. तो चोटें लगी है तो कभी कभी सर्दी के दिनों में तकलीफ आती है, लेकिन मुझे कोई भी फर्क महसूस नहीं होता. मैंने इतने सालों से काम किया है, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मेरे साथ काम किए हैं, आगे बढ़ गए हैं, शादी हो गई है, जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन मुझको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता. मुझे लगता है वैसे ही फौजी वाला हूँ और अभी भी वही काम कर रहा हूँ. जमीन कोई भी फ़र्क नहीं लगता है मेरे को. दूसरा सवाल ये है, मुंबई में हज़ारों लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, आपको भी आइडल बहुत लोग मानते हैं, बहुत हज़ारों लोग मानते हैं, तो क्या आप देना चाहेंगे जो एक एक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये करें आप? जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, मैं देखता हूँ लड़के लड़कियों को आजकल भी, मैं अपने बच्चों को ये एडवाइस दूंगा कि सिर्फ जाओ और दिल से काम करते रहो. बाकी प्लानिंग, पोर्टफोलियो, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, PR, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब ज़रूरी है, लाजमी है आज के ज़माने में, लेकिन उनका ध्यान मत दो, सिर्फ एक्टिंग करो. मैं एक दिन एक पार्टी में था थोड़ा 1.5 साल पहले, तो मुझे एक एक्टर मेरे दोस्त हैं, तो वो ऐसा कलेक्शन की बात कर रहे हैं अपनी पिक्चर की. मैंने सुना ये ओपनिंग होगी, ऐसा होगा, ये सब बिल्कुल मत सोचो, वो सब होता रहेगा. जिसका बिजनेस है वो करते रहेंगे, आपकी कलेक्शन भी ठीक होगी, फिल्म चलेगी भी, नहीं भी चलेगी, लेकिन अपना काम ये है कि हम एक्टिंग करते रहें और दिल से करते रहें. मैं देखता हूँ लोग आजकल जो है बहुत प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से कोई एक्टर नहीं बनता. आई थिंक इफ यू जस्ट कीप ऑन एक्टिंग, उससे एक्टर बनता है. इफ यू कीप ऑन प्लानिंग, आई थिंक ज़्यादा वक्त उसमें ज़्यादा हो जाएगा, और फिर आप जो है मेन काम है कि रोना है, हंसना है, लाइंस बोलनी है, हंसाना है, देखना है, दिखना है, वो सब बातें जो है. और थोड़ा सा कपड़ों पे कम ध्यान दो मेरे हिसाब से. मतलब मैं लड़कों को ये कहूँगा कि यार वो बड़े टिप टॉप बन के सब ऐसा हेयर ड्राई कम करो, मेकअप कम लगाओ, और स्नैजी कपड़े कम पहनो. मतलब अपना नॉर्मल टी-शर्ट जीन्स में रहो, जो फिल्म में पहनना है वो ज़रूर पहनो, फिल्म के लिए जो करना है उसमें जान लगा दो, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल रहो, स्टार मत रहो बाहर बन के.
Shahrukh, अभी उतार लो. बालों का क्या होगा मेरी? Thank you. ये देखो सीधा कर. हाय शाहरुख. शाहरुख यहाँ पर. शाहरुख, आपकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर सुपरहिट हो गई है. आप उसमें एक चोर बने हुए हैं, मतलब बाद में आप चोर एक रॉबरी करते हैं. अगर हम चोर की बात करें या फिर उनके फिल्मों की बात करें तो धूम है, धूम 2 है, धूम 3 है. तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि धूम 4 में अगर शाहरुख को अप्रोच किया जाए तो क्या शाहरुख उसमें दिखाई दे सकते हैं, या फिर आप मानते हैं यशराज के आप चहेते हैं हमेशा से? हाँ, मैं उनके लिए फिल्म कर रहा हूँ अभी. फैन फिल्म चल रही है, तो अमूमन में आदि और सब ऐसा मुझसे कह के रखते हैं एक ही साल में एक ही कर, दूसरी वाली अपने लिए क्या कर, क्योंकि 2 से ज़्यादा होती नहीं. लेकिन हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मुझको जब वो फिल्म शुरू ही हुई थी. Who directed the first one? Who directed the first one? Who? संजय गढ़वी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. जब उन्होंने शुरुआत की थी तो जितने एक्साइटेड वो थे इस फिल्म से, उदय और अभिषेक, तब जॉन शायद लास्ट में आए थे, पहले उदय अभिषेक साइन थे पिक्चर के अंदर. तो मैं हर बार धूम के लिए खुद बहुत एक्साइट होता हूँ, इवन व्हेन आई एम नॉट इन इट. सो अगर बनते रहेंगे और कभी मैं विलन बन सकूं, मुझे बड़ा कूल लगता है मोटरसाइकिल वगैरह. सो इफ आई गेट अ चांस, या बट दे हैवंट एवर टोल्ड मी टू डू धूम. अगर होता तो आदि मुझको जरूर पहले से कह देता. शायद चांस हो, हिंदी भी शायद खबरें आ रही थी. नहीं, वो मुझे पहले आ जाती खबर शायद. Shahrukh, right here in the center. First of all, I would like to wish you a happy birthday. Right here in the center. Thank you. I would like to ask you, in this new year, the new journey, if I can call it, you've embarked on, what kind of milestones would you like to set for yourself in terms of your films, in terms of your personal life, in terms of you as an entrepreneur from here on? I'll start from the opposite. I think as an entrepreneur, or because I've gotten into a lot of businesses by choice of liking those professions, I think my office has now for the last 2 years been set up in a way that most of them are run by experts. So it's a fantastic team, whether it's Kidzania, whether it is KKR, whether it is the production of Red Chillies and visual effects. Visual effects has an amazing team with Harry and Ketan. KKR is run fantastically by the whole team there, Venki. Red Chillies by Karuna, Kareem, lots of people. Manvi's here, a lot of people there. And Kidzania is an independent unit. So I really don't need to set any targets in terms of business. I just tell everyone that it should have my personality of being hospitable, being nice, kind, gentle, and hope things go nicely. Sometimes they do, sometimes they don't. Personally, yes, I'd like to spend a little more time with my children. My son is studying abroad, the other one is very young. I really enjoy that. That's a genuine personal happiness. Maximum thing that I do. Last night, one director friend of mine at the dinner asked me, how do you get your best high? Is it film? Is it this big hit? My best high, I realize, is to be with my children. And professionally, there's always a dichotomy, should I do a commercially viable film? Because if I don't do that, there are a lot of instances when I've been told, don't do such an offbeat film. People look forward to your holiday time, holiday kind of film, happy blockbuster film. Then if I do that, then people say, why aren't you doing a film which is more intense? So that choice always remains. I would like to somehow start doing at least 2 to 3 films, but it takes time. Like Happy New Year has taken 170 days. I hope Fan takes 70, 80. I can do another one race and say the next one. The films do take a little while, but I would like to do at least 2.5 films and be able to strike that balance as an actor, because there are days that I feel, I should be more involved as an actor. There are days when I feel I should be involved more as a star. So that dichotomy continues, and I'm greedy. I want to do both. I try and do one sometimes. अभी Happy New Year जब किया तो मुझको excuse था, चोट लगी थी. My shoulder had just had a surgery, so I said चलो एक ठीक है. But now that I'm healthy, I would like to do 2 films, but not at the same time. It's unfair to everyone in today's time and age. Alright, Shahrukh,
one more question I would like to ask you. You're starting a new year today. The Maharashtra government, the Indian government, so as to say, has also started a new year. They've started a new journey. What do you have to? You are a socially aware citizen of the country. What would you like to see? The kind of changes, or what do you have to say of the new government so far? What they've done and how you would like to go. I'd first like to request one thing. अब आप लोग शायद नहीं because आप politically इतने involved नहीं हैं, आप mostly showbiz में. Some of you must be covering that also. But to the media, I would say that don't jump the gun and start going first one side, wow, fantastic, and then 6 months later say not good, I think every government, every person who comes in power, whichever party it is, has been chosen by the country democratically. So they should be given a chance. A couple of years we should allow, because I think everyone has good intentions. And being socially aware, not politically so aware, but nationally aware, I think education and women empowerment, if those are basic subjects. Of course there's economy, there is finance, and there is development, and there's infrastructure. All that is too big for me to understand. But just on a general level, as a society, I think women empowerment, goodness, and education for children. And health is already starting, cleanliness is already starting. All these things are actually social aspects. If those can be done properly and we understand it, be educated about it, the rest of it too deep for me to talk about, but let's give it time, 2 years, and let them settle down and start the new year. And एकदम हमारा ऐसे कि opening weekend क्या है is not important. I think it is important we allow the people in power to do what they have set their targets as. So it was fantastic, I think, the country is chosen democratically, completely overwhelming majority. I think that itself is a big victory for the country. So there will be laws and bylaws which can be passed openly without having to, worry about negotiating because they are in tandem with some other government. So I think so far so good. They have clear majority, so there will be clearer laws and bylaws, I think. शाहरुख, सबसे पहले तो आपको सालगिरह की मुबारकबाद. Thank you very much. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. थैंक यू. काफी साल हो जाएंगे. बस इतना सा हाथ जो था वो तो आपने पूरा कर ही लिया. एक के बाद एक माइलस्टोन्स आप क्रॉस कर रहे हैं. जिंदगी में आगे भी बहुत से आपके साथ जो हैं इम्तिहानात होंगे. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपकी एक फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो 1000 हफ्ते पूरे करने जा रही है. मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में एक तारीखी माइलस्टोन है. इस सिलसिले में आपने कोई मंसूबे बनाए क्या? ऐसा हमने सुनने में आया है. मुझे 2-4 दिन पहले मैंने काजोल से बात की थी. आई थिंक कुछ इंटरव्यूज वगैरह का हम जो है फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा उसने मुझे कुछ कहा कि कुछ 15-20 मिनट फिल्म की फुटेज जो एडिटेड थी तो शायद वो दिखाई जाएगी या उसके ऊपर हम एक इंटरव्यूज बना रहे हैं. फिर मुझे अभी मैं मिला नहीं हूँ बहुत दिन से आदि वगैरह से, बट आई थिंक एक आइडिया मैंने सुना है कि दिलवाले के जब 1000 हफ्ते पूरे होंगे शायद हम सब लोग जाके फिल्म को देखेंगे. उसके बाद ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आदि के लिए नहीं, काजोल के लिए नहीं, लेट अंजुषी के लिए नहीं. आई थिंक ये कुछ अलग ही चीज़ है. ये फिल्म से ज़्यादा है. आई थिंक एक ईरा को डिफाइन करती है, हमारी वजह से नहीं. आई थिंक मैं अभी भी लड़कियों से मिलता हूँ, लड़कों से कहते हैं कि हमारी शादी दिलवाले की वजह से हुई. अभी भी लोग मतलब बहुत एक प्यार है उस फिल्म से. वो फिल्म से ज़्यादा बन चुकी है. तो आई थिंक उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है और उससे सीखना ज़रूरी है. क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमने भी वैसी फिल्म नहीं बनाई है, किसी ने वैसी फिल्म नहीं बनाई है. तो वो एक सीख है. बट आई थिंक वो दिलों में क्यों बस गई है किसी को मालूम नहीं है. और 1000 हफ्ते पे एक मोमेंट है, जैसे आप कह रहे हैं, एक माइलस्टोन जरूर है. मैंने शायद मैं गलत ना हूँ, आई थिंक द सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द वर्ल्ड है. एक चाइनीज फिल्म शायद उससे ज़्यादा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो बहुत बड़ी बात है और मैं उसमें हूँ. ये मेरे को बहुत खुशकिस्मती लगती है मेरी. सो यस, देयर विल बी सम सेलिब्रेशन. आई एम श्योर यशराज फिल्म्स विल डू समथिंग एंड यस जी इज नो मोर. तो शायद उस याद में भी, उसकी इज्जत के लिए भी विल डू समथिंग फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Hi Shahrukh. Yeah. Wish you many happy Thank you very much. Shahrukh, how would you reinvent and rediscover yourself? And what is success for you now? I think Being the most successful star and actor in the Bollywood. I think reinvention and rediscovering comes from the creative people who make films with you. I think it will come when the directors think of pushing or having faith in me that कि शाहरुख तुम ये कर सकते हो. There are certain things I do very well because I've been doing them for a long time. There is a little bit of technicality in acting that I know. There is a little bit of star aura that I can create in my films. But I think as an actor, I will have to work with directors who can
push the boundaries with me ऐसे इशारों के लिए करना पड़ेगा. It's not about 1 take or 10 takes. It's about thinking new for me, and I should have the courage to say yes. I'd like to push myself. Like I think my name is Khan was something like that. Chak De is little like that. Swades is something like that. I think even 1 or 2 commercial films have some very nice aspects in them as actors. So I think that is the courage I need to have, and that is the offers I need to have. So that reinvention, rediscovery, inshallah, will happen. What new can I do? This is an actor should only act. So I hope I can create some new. It's been years now, 25 years next year. So every 5 years, 6 years, something new comes along, and I hope I can entertain people for as long as I live, because that's the only desire I have in my heart. Shahrukh here. Many happy returns of the day. Thank you. I just want to know, you said once that you wanted to be the most recognized face in the world. Now that you're more or less among the Indians, you are the most recognized face. I would like to know from your angle, how much is your contribution as you think, and how much is Providence? तब मैं छोटा था तो ऐसी बात कर दी थी मैंने कि I want to be the most recognized face in the world. But मैंने हमेशा कहा है जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी मेहनत है, उससे कई ज़्यादा मुझको मिला है. और मैं ये मॉडेस्टी से नहीं कहता हूँ, ह्यूमिलिटी से नहीं कहता हूँ, ये सच्ची बात है. क्योंकि मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, मेरे साथ एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, मुझसे बेहतर है, दिखते अच्छे हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं शायद जितनी मैं करता हूँ, और उतना ही दिल है उनका फिल्मों में काम करने का. तो सिर्फ मुझको ही ऐसा क्यों मिला है? मुझे लगता है कि एक डोमिनो इफेक्ट हो गया कि एक ईरा के लोगों को मैं पसंद आया, वही उत्तराधिकार में बच्चों को ही पास कर रहे हैं. ऐसा कुछ है सिस्टम. आई थिंक इट्स गॉट टू डू अ लॉट विद हाउ पीपल थिंक ऑफ मी. और मैं कई बार अब नोटिस करता हूँ कि मेरी फिल्मों से ज़्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं एज अ पर्सन. एंड दिस इट्स बिकम, यू कांट सेपरेट माई कैरेक्टर फ्रॉम मी पर्सनली, विच इज़ अ गुड थिंग, which is a bad thing for an actor. I need to work on those things harder. But I think it's a good thing that people love me beyond my films and give me so much love everywhere in the world. And but having said that, at 49, I'd still like to say that I was young when I said this, but I'm still immature enough to say yes, I would like the whole world to recognize me. I still want that. हाय शाहरुख, आपके राइट में यहाँ पे सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you very much. आज आपके जो फैंस हैं उनके लिए सबसे स्पेशल संडे है, क्योंकि आज पूरे दिन भर मूवी चैनल्स में आपकी फिल्में आने वाली हैं, और एक मेरी भी फेवरेट फिल्म है डर, जो बहुत शाम को आने वाली है. मेरा सवाल ये है कि जब डर शब्द आप सुनते हैं तो शाहरुख को किस चीज़ से डर लगता है सबसे ज़्यादा, या नहीं लगता है? ऐसा कोई डर नहीं लगता मुझको, मगर आई थिंक अपने बच्चों के लिए लगता है. आई थिंक माँ बाप को वही होता है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डर लगे. वो उस दिन मैंने एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी वीडियो देखी, एक आई थिंक मिजोरम के फुटबॉलर थे, उनको चोट लग गई फुटबॉल खेलते हुए एंड ही पास्ट अवे. तो वैसा वो फ्लिप करते हैं, मेरा बेटा भी करता है. तो मैं इंदौर में था, तो मैंने जल्दी से उसको फ़ोन किया कि यार ऐसा मत करो. सो आई थिंक द ओनली डर यू हैव इज कि योर चिल्ड्रन शुड रिमेन हेल्दी एंड ठीक ठाक रहें. और उसके अलावा मुझे अपने बारे में, अपने काम का या नाम का डर नहीं लगता. मुझे लगता है जाते जाते भी बहुत साल लग जाएंगे इसको ख़त्म होते होते भी. सो मुझे उसका डर नहीं लगता. हाँ, इस बात का डर ज़रूर लगता है कि कई बार मैं उतना नहीं दे पाता डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, ऑडियंस को, जितना मुझसे तवक्को करते हैं लोग. तो मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि यार आई होप मैं उतना अच्छा कर लूँ जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैं सचमुच चाहता हूँ कि हर फिल्म में मैं हर किसी के पैमाने पे खरा उतरूँ, हर किसी के कोई भी चीज़ करूँ. क्रिकेट के लिए खेलने जाऊँ तो मैच जीत जाऊँ. लोग मेरे साथ बहुत सारी उम्मीदें जोड़ कर आते हैं कि अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो इफ़ आई एम देयर हम जीत जाएंगे. मुझे बहुत डर लगता है, जाता हूँ कि यार के मैच के लिए ओ यू आर लकी, इफ यू आर देयर वी विल विन. तो मुझे मालूम है मेरा कुछ लेवा देना नहीं है इसके साथ, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल होता, नर्वस होता हूँ. अगर इतना लोग सोच रहे हैं तो आई होप उनकी उम्मीदें ना टूटे. सो दैट इज़ द ओनली फेयर आई हैव, दैट आई होप जो एक लोगों ने ऐसा मापदंड रखा है मेरे लिए कि अगर शाहरुख अभी कभी कभी मुझे whatever you touch turns to gold. So I hope it turns to gold, not because I want it, but because so many people hope it does. So to be able to keep up with the expectations and hopes of so many people who put their desires, their wants and their goals according to me because they like me so much. When I fall short of it,
or if I fall short of it, that scares me. It's very scary because it's not the responsibility of your family or friends, it's the responsibility of millions of people. It scares me. I hope I don't fall short. I'm sometimes at a party, sometimes I get angry, sometimes I get extra happy, sometimes I do something, and I know some of those actions are not right maybe. Or some of them are natural actions but don't look right if a movie star does it. So I have to hold myself back, that I hope I'm able to be, I have to behave much better at times to be able to respect the fact that I don't fall short of people's hopes. That scares me.